हमने सोल प्रोप्राइटर जॉइंट हिंदू फैमिली और ये वीडियो है पार्टनरशिप पढ़ने का। पार्टनरशिप में बहुत से लोगों को पार्टनर्स के टाइप्स में डाउट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मीनिंग, फीचर्स, मैरिड्स, डीमैरिड्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो आप सभी लोग ढूंढना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। So let's discuss the meaning of partnership firm. It is an association of two or more persons who have agreed to share the profit of the business which is carried by all or any of them acting for all. इट मीन्स जो पार्टनरशिप है ये अकेले नहीं चलता, तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 मेंबर्स और मोर हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जिनका मेन मोटिव क्या है, टू प्रॉफिट अर्न करना। इस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स उसको कैरी ऑन करें या फिर उनमें से कोई एक या दो उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। यही मीनिंग है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Let's discuss the features of partnership firm. So the first is membership. There are minimum 2 members. As we know, partnership की meaning ही है, it is an association of minimum 2 members or maximum 100. But in some other cases, like in banking business, maximum members are 10. Let's go to the second feature of partnership, that is agreement. So in partnership, there must be an agreement between partners, whether it is an oral or it is an written one. अगर वो ओरल एग्रीमेंट रहता है तो उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, बट अगर वो रिटन एग्रीमेंट रहता है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, और इसको आप लीगली प्रूफ कर सकते हैं। So let's go to the next feature, that is known as unlimited liability. So in partnership, the liability of all the members are unlimited. So next feature is प्रॉफिट शेयरिंग। सो जैसे कि हम लोगों को पता है दैट इन पार्टनरशिप ऑल आर पार्टनर्स, तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर होता है इन दियर स्पेसिफाइड रेशियो विच इज गिवन इन दियर पार्टनरशिप डीड। इफ इट इज रिटन वन तो वो पार्टनरशिप डीड में होगा, इफ इट इज ओरल देन उनके बीच का जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पर प्रॉफिट शेयर होगा। नेक्स्ट फीचर इज रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म आर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, but it is not compulsory to get registered under this act. It is desirable, but it is not compulsory to be registered in this act. So here we have completed all the features of partnership: membership, agreement, unlimited liability, profit sharing, registration. Let's start some merits or the advantages of partnership. First is easy to form, as it is very easy to form the partnership business. There is no legal formalities are required to form a partnership firm. क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जैसे पता है registration is important, but it is not compulsory. So it is very easy to form the business. Next is larger financial resources. As in partnership, all the partners contribute some amount as a capital. So as compared to sole proprietorship and joint Hindu family business, partnership has larger financial resources. Third is more scope for expansion. So as compared to sole proprietorship, partnership has more scope for expansion because partners can arrange larger fund as a capital in the firm. Next is secrecy. Same as sole proprietor, in partnership also, it is not required to publish its accounts. That's why all the secrecy can be maintained. Last is risk sharing. So हमें याद है in sole proprietorship that वहाँ single ही person था who will bear all the risk. But in partnership business, all the partners will share the risk in the same ratio which is a partnership deed. Let's discuss the demerits of partnership. First is unlimited liability. As we already know, all the partners have unlimited liability. Second is lack of public confidence. Why? Because in partnership, customers or the public have less trust or faith because उनकी कोई भी report publish नहीं होती है. That's why in partnership business, public has less confidence on them. Next is conflict. Conflict means dispute. So in partnership, as compared to sole proprietor, जहाँ पर single person ही सारे decision ले रहा है और action कर रहा है, but in partnership there may be 2 or more person एंड सभी पार्टनर्स डिफरेंट फैमिलीज एंड डिफरेंट ओपिनियन के थ्रू आते हैं. दैट्स वाई देयर ओपिनियन और देयर डिसीजंस मे बी डिफरेंट. सो देयर मे बी चांस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे हम लोगों ने सुना है जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहीं खटकते हैं, सेम यही मुहावरा पार्टनरशिप पर इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज रिमेन अनसर्टेन बिकॉज यहाँ पर जो अदर पार्टनर है he may die, he may become insolvent and this will create the uncertainty of the existence of partnership business. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स क्या हैं. अभी हम लोग इसके बाद
पार्टनर्स के टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो इसको हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट on the basis of time period. So first is fixed period. So fixed period partnership means जब हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट ही किया है, देन ओनली हमें पता है कि हमारा जो पार्टनरशिप है ये 5 साल तक के लिए रहेगा या 10 years तक के लिए रहेगा. So this time period is already fixed. So it is known as fixed period partnership. Second is indefinite period. Here the time period of partnership is not decided. Let's discuss the next one on the basis of object. First is as per will. तो यहाँ पर पार्टनर्स के विल के अकॉर्डिंग जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो पार्टनरशिप बिजनेस रन करेगा. सो इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल. एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. हियर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि उनको कोई एक प्रोजेक्ट करना है. सपोज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, दे मेड द एग्रीमेंट एंड दे स्टार्टेड दियर वर्क. यहाँ पर दे स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दैट वर्क. जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा सेम डे वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी वहीं एंड हो जाएगी. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप. यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप. यहाँ पर 1 or 2 पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है बट द अदर वन हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. बट इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप इज नॉट अलाउड. ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है. सो थ्रू दिस वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. तो हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स के टाइप पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बिजनेस ऑपरेशन एंड अदर फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. सो यहाँ पर पार्टनर्स का फर्स्ट टाइप है जनरल पार्टनर. जनरल पार्टनर सेम मतलब यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं वो अनलिमिटेड पार्टनर रहते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. सेकेंड इज लिमिटेड पार्टनर. तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. तो जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं और इसका अलग से हमने एनिमेटेड वीडियो बनाई है जिसको आप जाकर डाउट क्लियरिंग सेशन में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी अलग से लिंक दी है, उसमें भी जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. So, as the name suggests, active partner, so he will participate actively in the management of firm. और यहाँ पर he will contribute capital also. उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और वो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की वजह से जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उन सब में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा. मतलब उन सारे प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करता है. और एक्टिव पार्टनर है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी क्योंकि वो 100% मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी. नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर. दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉर्मेंट पार्टनर. तो जैसे कि इसका नाम है स्लीपिंग पार्टनर, तो ये सारी चीज़ें तो करता है बट डेली ऑफिस नहीं जाता, या आप कह सकते हैं मतलब ये हुआ कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में. उसके अलावा वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके अगेंस्ट में वो प्रॉफिट भी रिसीव कर रहा है और लॉस भी शेयर कर रहा है और उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है. बट वो क्या चीज़ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है. आई होप क्लियर है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर. इस टाइप के पार्टनर्स ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ही उनका कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में, बट उनका नाम ही उस फर्म के साथ जुड़ जाता है बिकॉज ऑफ देयर गुडविल. बट एक्चुअली आउटसाइडर के लिए वो पार्टनर नहीं होते हैं बट इन लीगल टर्म्स क्योंकि उनका नाम उसमें ऐड ऑन है इसीलिए उनकी लाइबिलिटी भी उस फर्म में बनती है. मतलब क्या हुआ, नॉमिनल पार्टनर ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और ना ही उनको कोई भी प्रॉफिट या लॉस में उन लोग शेयर करेंगे, ना ही वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बट उनका नाम उस फर्म में ऐड ऑन रहता है इसीलिए उनकी लाइबिलिटी उस फर्म के लिए हमेशा रहेगी. नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं ये दोनों जो है वो नॉमिनल पार्टनर के ही एक टाइप कह सकते हैं. तो फर्स्ट इज स्टॉपल एंड सेकेंड इज होल्डिंग आउट. आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसके लिए आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जाइए और वो एनिमेटेड वीडियो जो हमने बनाई है उसको ज़रूर देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए चलते हैं वन बाय वन. यहाँ स्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों के फीचर्स जो भी हमने नॉमिनल में बताया सेम एज इट इज़ है. ना ही ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो ना ही इनको कोई शेयर करेंगे इन लोग प्रॉफिट और ना ही लॉस शेयर करेंगे. इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है मैनेजमेंट में, बस इनका नाम उस फर्म में ऐड ऑन हो जाता है इसलिए वो लायबल हो जाते हैं उस फर्म के लिए. ठीक है, अब हमें ये सब तो पता ही है लेकिन मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं. अब स्टॉपल मतलब क्या हुआ. सो स्टॉपल पार्टनर वो हुआ जो कि बाहर का कोई आउटसाइडर है, फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ अपने वर्ड्स के थ्रू, कुछ एक्शन के थ्रू पब्लिक में ऐसा रिप्रेजेंट किया दैट बाकी लोग उसको एज अ
पार्टनर ट्रीट करने लगे। सपोज पब्लिक मीटिंग में फर्म के फेवर में कुछ बातें कह रहा है, तो लोगों को क्या फील होगा दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। और अगर उसकी गुडविल अच्छी है, बहुत सारे पब्लिक उस फर्म में इन्वेस्ट करेगी। दैट्स वाई वो आउटसाइडर बिकम द पार्टनर। और वो कौन सा पार्टनर बनेगा? स्टॉपल पार्टनर, क्योंकि उसका नाम उस फर्म में एड ऑन हो जाता है। इसीलिए उसकी लाइबिलिटी फॉर दैट रीजन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज होल्डिंग। होल्डिंग आउट और स्टॉपल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर स्टॉपल की तरह वो अपने वर्ड्स और एक्शन के थ्रू बोल नहीं रहा है, कोई दूसरा पार्टनर उसको एज अ रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। और उस वक्त उस आउटसाइडर मेंबर ने ऐसा कोई भी ना अपना वर्ड्स के थ्रू ना जेस्चर के थ्रू ऐसा रिप्रेजेंट ही नहीं होने दिया दैट ही इज अ पार्टनर, बट वो साइलेंट हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी साइलेंट होता है देन इट इज अ पॉजिटिव सिंबल दैट ही इज ऑल्सो एग्री फॉर दैट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए पब्लिक उसको ट्रीट करती है दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, और इसीलिए उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो जल्दी से जाइए और एनिमेशन वीडियो देखिए, उससे आपको डेफिनेटली वो याद हो ही जाएगा। लेट्स डिस्कस द अदर वन ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स। सो द फर्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मीन्स ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहा है बट लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। उसने कैपिटल इन्वॉल्व किया, उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर हो रहा है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है लेकिन लोगों को उसको पता नहीं है। तो लोगों के सामने वो सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर सिंपली मीन्स जिसकी 18 ईयर्स से कम है, अंडर 18 ईयर्स है, और ये इस टाइप के पार्टनर्स को जनरली अलाउ नहीं किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं देन ही विल बिकम द माइनर पार्टनर। और माइनर पार्टनर ना ही कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ना ही उसको कोई लॉस बियर करना पड़ता है, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी होती है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करता है फर्म में, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। वी कैन से वो बेनिफिशियरी पार्टनर है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में उसका शेयर रहता है, लॉस अगर हुआ तो लॉस में वो बियर नहीं करता है। सब पार्टनर मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो पार्टनर ऑफ द फर्म है आउटसाइडर पर्सन को ये प्रॉमिस करता है दैट कि फर्म का 2% प्रॉफिट आपके पास जाएगा। सिंपली मीन्स कि उसको फर्म में कोई भी राइट नहीं है, ना ही वो एक्टिवली मैनेजमेंट कर रहा है, ना ही उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना उसकी कोई लाइबिलिटी है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि वो कोई दूसरे पार्टनर ने उसको आउटसाइडर को ये राइट दिया है दैट आपको इतना % प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए वो पार्टनर बन जाता है, और उस पार्टनर को हम लोग सब पार्टनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब जो भी न्यू पार्टनर उस फर्म में एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर की तरह, तो वो इनकमिंग पार्टनर है। नेक्स्ट है आउटगोइंग पार्टनर। सिंपली मीन्स अगर 3 पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में से एक पार्टनर उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ करके वो बाहर की तरफ जा रहा है, उस फर्म को छोड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं आउटगोइंग पार्टनर। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।